سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ مولوی عبدالرحمن دیوبندی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا بھولا بنا کے جو ہے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے امت میں یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں کیسے جو ہے پیار محبت پیدا ہوگی، کیسے جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہوگی، کیسے جو ہے انتشار ختم ہوگا۔ بڑا بھولا بن کے بات کر رہا ہے۔ خیر، میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، پیار محبت سے اگر بات ہوتی رہے گی تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ کو امت کی فکر ہوئی۔ خیر، اس میں پوری آپ گفتگو سنیں گے، پوری بات سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر پھر میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ ابھی تک مجھے کوئی ایسا دیوبندی ملا نہیں جو مجھ سے ایک بار بات کر کے صحیح طریقے سے بعد میں وہ صحیح سے بات کر لے، ایسا ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور وہی اس نے کر کے دکھایا۔ یہ پہلا گفتگو ہے، اس کے بعد اس کے جو بعد ایک اور گفتگو ہے، اور ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد کوئی اور گفتگو ہو جائے۔ خیر، آپ پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں۔ گرگٹ کی طرح کس طرح یہ کلر بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، گرگٹ سے زیادہ کلر بدلنے والے یہ لوگ ہیں۔ آپ سنتے رہیں اور ان کی حقیقت کو پہچانتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور جو نئے بھائی ہیں اس چینل پر، وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابی دیوبندیوں کی حقیقت جو ہے آپ حضرات کے سامنے پہنچتی رہے، آتی رہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جی، کال آیا ہوا تھا حضرت آپ کا؟ جی، کال آیا تھا، کال لگایا ہوا تھا، لیکن آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی حضرت۔ اچھا، کون بول رہے ہیں؟ بولتے ہیں انسانی رہا ہوں، مسلمان کا کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحمان۔ کہاں سے ہیں؟ کہاں سے ہیں یا کہیں سے نہیں ہے حضرت، جو جس متعلق میں نے فون کیا ہے بات کرنا چاہ رہے، تھوڑا اس متعلق سے میں تھوڑا سا آپ سے کچھ بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اور بات رکھنا چاہوں گا انسانیت کے ناطے سے بات رکھنا چاہوں گا۔ اچھا جی، غصے میں نظر آ رہا ہے؟ جی، کچھ غصے میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اگر میں آپ کو بھائی بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، مطلب اس بات کو اگر آپ نے ہی منع کر دیا میں آپ کو بھائی بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، تو کس انداز سے پکاروں میں آپ کو؟ نہیں، بھائی ہوئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب بات کرنے کا جو آپ کا نظریہ جو لگ رہا ہے تھوڑا سا آؤٹ لگ رہا ہے۔ کس لہجے میں بات کروں میں آپ کو بھائی بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، سلام بھی نہیں آپ کو کر سکتا ہوں، تو کس لہجے میں بات کروں پھر میں آپ کو بتاؤں ساری حقیقت۔ کیا حقیقت بتائیں گے، بولیے۔ نہیں، آپ کو میں کس نام سے پکاروں، یا بھائی کر کے پکاروں، یا حضرت کر کے پکارے، یا مولانا؟ پہلی بات تو مجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں، کس مسلک سے ہیں، آپ نے کچھ بات ہی کہاں کی ہے، کچھ بتا کے کہاں دیا ہے آپ نے؟ تو آپ اتنا ہمیں بتا دیجیے حضرت، میں بات آپ کس سے کروں، پھر میں ساری کی گفتگو ساری چیز بتا دوں گا آپ کو۔ مطلب کس مقصد سے، کس پرپس سے آپ نے مجھے کال کیا تھا؟ میں آپ سے کچھ جاننا چاہ رہا تھا، ہم تو ایک گنہگار انسان ہوں حضرت ہوں۔ اچھا جی، آپ ہمیں اتنا بتا دیجیے، پھر میں آپ آگے کی بات کروں، زیادہ لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کروں گا، اور بات جو کروں گا انسانیت کے ناطے سے بات کروں گا حضرت۔ ہاں، انسانیت سے کرو گے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جی، انسانیت کے ناطے سے بات کروں گا، اور ہمیں کوئی نہ زیادہ مسئلے مسائل کے اندر جانا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ نہیں، دیکھیے، جب بات کرو گے آپ تو پھر قاعدے قانون کے اندر ہی کرو گے، ایسا نہیں ہو کہ صرف آپ اپنی سناؤ اور ہماری نہ سنو، یا صرف اپنی سمجھانے کی بات کرو اور ہماری نہ سمجھو۔ نہیں، آپ حضرت ہمیں اتنا بتا دیں کہ میں آپ سے
किस नाम से पुकार बात करूँ या आप? मेरा नाम नूर हसन है, आप मेरा नाम ले सकते हैं, बोलिए। अच्छा अच्छा, नूर हसन सिर्फ लगाऊं कि आगे और कुछ लगा लूं? बस खाली नूर हसन नाम से ही काम चल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, नूर हसन साहब लगा दे रहा हूँ, ठीक है? आपको भाई अच्छा नहीं अगर लगे तो साहब लगा दे रहे, ठीक भाई? नूर हसन भाई, मैं तकरीबन आपका 3 सालों में चैनल को देख रहे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुन पा रहे हैं हजरत बात जी? 3 सालों से तकरीबन देख रहा हूँ चैनल को, और फिलहाल मैं जो ताल्लुक रखने दारुल देवन से ताल्लुक रखने वाला हूँ, ठीक है हजरत? अच्छा, बात पहले में समझ लीजिए। जी जी। और 3 सालों से तकरीबन आपके चैनल में देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमने हमारी तरफ से ना इस नंबर से कोई कमेंट पहुंचा होगा आज तक आप तक, है ना? तो कोई कमेंट पहुंचा नहीं होगा और ना ही पहुंचने की कोई कोशिश हुई। लेकिन जब हमारे पर जो बात आ गई है कि आप हजरत से बात तो करें, बात जो करना है आपको मीठे लहजे में बात करना है, कड़वे लहजे में बात नहीं करना है, तो मैं आपसे हजरत बात जो करने का हमारा जो मैं ये जानना चाह रहे थे कि जो उम्मत के अंदर बिगाड़ जो पैदा हो रहा है इसका सुधार कहाँ से होगा? मैं इस बात के वास्ते आपकी बात फोन किया था हजरत। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने जी कि उम्मत के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ये कहाँ से सुधार पैदा होगा। जी जी जी, हाँ, कहने का मतलब पूरी उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने जी। और ये सवाल आपके जहन में आया तो देखिए हजरत, क्या नाम है आपका? मैं नाम अब्दुल रहमान साहब। जी जी। आपके वालिद को या आपके बड़े भाई को जी जी मैं बगैर किसी वजह के बदतमीज बोलूं जी, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नहीं तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना। ऐसे ही हर किसी को अपने अपनों के लिए बुरा लगता है, जी, है ना? और बिगाड़ यहीं से पैदा होता है। जी असल मोहब्बत ही नफरत सिखाती है। जी जी, ये जो बिगाड़ पैदा होता है मोहब्बत की वजह से। जी जी, मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो फिर आपकी मोहब्बत जो है ये गवारा नहीं करेगी कि यार ये मेरे सामने मेरे चाहने वाले को ऐसा बोल रहा है। जी जी, तो आपकी मोहब्बत वहाँ जोर मारेगी। हजरत अगर थोड़ा माजरत चाहूँगा 2 मिनट का, अगर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ी सी हजरत मैं चाह रहा था पहले मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं आपकी हमने बात सुनी कि नहीं सुनी अब्दुल रहमान भाई? अरे बात हमारी वो बात नहीं करना। मैं यार ये क्या गड़बड़ ऐसे करके मजा नहीं आता ना। हमारी भी बात सुन लें आप। बड़ी अच्छी बात कही आपने और आप हमारी बात सुन लें यार। आप भुलवा दे रहे हो बीच में बोल के। जी जी, तो ये मोहब्बत का तकाजा है जी कि हमारे चाहने वाले को अगर कोई बुरा भला कह रहा है हमारे सामने तो फिर हमें बर्दाश्त नहीं होता। जी जी, शायद मैंने भी आपके किसी जो है बुजुर्ग को या चाहने वाले को कुछ गलत कहा होगा तो शायद आपको भी नागवारी गुजरी हो। नहीं बिल्कुल, वो तो है, गुजरती है ना। बिल्कुल। हाँ, मोहब्बत का दूसरा नाम नफरत है, ये ध्यान रखें आप। जी, अगर मोहब्बत नहीं तो फिर नफरत भी नहीं। जी, अगर आपको अपने वालिदैन से मोहब्बत है और मैं आपके सामने बुरा कह रहा हूँ तो आपको यकीनन मुझसे नफरत होगी। जी, और अगर अपने वालिद से मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं आपके वालिद को कुछ भी कहता रहा हूँ, तुम्हें नफरत हो ही नहीं सकती मुझसे। जी, मेरे साथ खाओगे, पियोगे, गले मिलोगे, सब कुछ करोगे। जी, बात आ रही समझ में? समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारे नबी के जो गुस्ताख हैं, जो हमारे नबी की शान में तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं, उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि एक आम आदमी के लिए भी नहीं किए जा सकते। जी, तो फिर इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत होगी कि नफरत होगी अगर हमारे नबी के लिए कोई घटिया बात बोल रहा है? रहमान भाई जी, हमारे वालिद को कोई बुरा भला तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब वालिद के लिए नहीं कर सकते हो तो हुजूर तो फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हत्ता कि अपने बीवी बच्चे, यानी कि अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक उसको मुझसे मोहब्बत ना हो, कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। जी जी, तो फिर बाप की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ, भाई की मोहब्बत एक तरफ, यानी दुनिया की सारी चीजों की मोहब्बत, सारे लोगों की मोहब्बत एक तरफ, यहाँ तक कि अपनी जान की भी कोई कीमत नहीं। अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने का हुक्म। जी जी,
हाँ, माँ बापों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत का पैगाम, हुजूर का ऐलान, हुजूर की हदीस, समझे जनाब? हाँ जी जी जी। तो हुजूर का फरमान तो यह है, उस वक्त तो कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। माँ बाप से भी ज्यादा, भाई बहन से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा, बीवी बच्चों से भी ज्यादा, जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना करे। तो जब अपने वालिद के लिए आप कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, फिर हुजूर के लिए जो है कैसे कर सकते हो? और अगर नहीं कर सकते तो फिर हुजूर के गुस्ताखों में कैसे रह रहे हो? अच्छा अच्छा। तो हजरत मैंने कहने का मतलब हमारा ये है कि ठीक मालूम मिसाल तो हमारे अंदर बिगाड़पन है, मैं अपने हमारे अंदर बिगाड़पन है। हाँ हाँ ठीक है हजरत। जी जी जी। और आपके अंदर भी बिगाड़पन है, जैसे दोनों बात कह रहे हैं, बात को दिल पर मत लीजिएगा। नहीं, मैं तो दिल पे लेता हूँ बात। हैं? मैं तो दिल पे लेता हूँ बात, मैं दिल पे लेके ही बात करता हूँ। नहीं, दिल पर लेने वाली बात ली, हर बात थोड़ी ली जाएगी। अब जैसे हर बात अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दीन की बात को, हर बात को जो है दिल पे लेते हैं। अगर हर बात दिल पे लेंगे तो मैं आप अच्छा आप नमाज किस तरह समझ सके, मैं किस तरह समझा सकूं? नमाज, हाँ ना, वो तो बात सही है। नमाज अगर दिल से ना पढ़ी जाए तो क्या नमाज होगी? नमाज वो तो दिल से पढ़ी जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारे अंदर बिगाड़ है, आपके अंदर भी बिगाड़ है, ठीक है, मिसाल तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि तो आपके अंदर बिगाड़ नहीं है। आप इसके अंदर सुधार किस तरह पैदा होगा, इसके बाद मुतालिक मैंने आपके पास फोन किया। अच्छा, हमारे पास बिगाड़ कौन सा, जरा ये बताइए, हमने कौन सा बिगाड़ पैदा किया है? अरे बिगाड़ उसकी निशानी उसकी निशानी की बताइए। उसके बिगाड़ तो वो जो का नाम जब आमने सामने होगा, जब मुनाजरा होगा, उसके मुतालिक सारी वो बात छोड़िए, आमने सामने की बात छोड़िए, सिर्फ निशानदेही कराइए आप कि हमारे अंदर जो बिगाड़ है वो कौन सा है, हमने क्या किया। हजरत ये सारी बातें फोन पर नहीं होती है। अच्छा ये बताइए, आप मुझे डंडा लेके लाठी से मारेंगे, डंडे से लाठी से मारेंगे तो सामने वाला अपना बचाव करेगा कि नहीं करेगा? बचाव करने वाले को क्या कहोगे आप? मारने वाले को फसादी कहोगे या अपना बचाव करने वाले को फसादी कहोगे? ये बताओ। मारने वाले को कहेंगे, बचाने वाले को तो नहीं कहोगे ना? नहीं, बचाने वाले क्यों बचा, वो तो खुद बेचारा बच रहा है। तो फिर अगर कोई ये बता रहा है कि देखो फलाना ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं है, हमारे नबी के तो ये शान है, हमारे नबी की तो वो शान है, कोई अपने नबी की शान बयान कर रहा है, कोई दूसरा कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर दोनों में गलत कौन है ये बताइए आप? ये शान बयान करने वाला या शान घटाने वाला? शान घटाने बढ़ाने की हजरत बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरी बात सुने आप यार, हमारा तो मामला ही, हमारा कोई अपनी जाती लड़ाई नहीं है ना, जाती मामलात नहीं है ना। जी, आपने मेरी जमीन नहीं छीनी ना, नहीं, ना आपने मेरे रुपए मारे हैं, नहीं, ना हमारे किसी भाई को कत्ल किया है, नहीं ना, कोई जाती मामला तो नहीं है हमारा तुम्हारा। नहीं। हाँ, यहाँ तो दीन को लेके बात है। जी जी। हाँ, तो हजरत मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका सुधार कैसे पैदा होगा? इसका सुधार ऐसे ही पैदा होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो तो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करो और हुजूर के गुस्ताखों से दूर रहो, हुजूर की तारीफ करने वालों के साथ रहो, हुजूर की तौहीन करने वालों से दूर हट जाओ, ऐसे इसका समाधान होगा। अच्छा अच्छा जी। जो लोग कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, वो गलत कहते हैं। हजरत मैंने बातें बहुत सारी सुनी है कि आपने इनाम तक बहुत 5-5 लाख रुपए इनाम रख दिया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खुलेआम ऐलान है। अगर कोई भी जो है जिस बात पर मैंने ऐलान किया हो उस बात को आगे मेरे सामने जो है जैसे मैंने कहा है, ठीक है जी जी, जो भी बात मैंने कही है आए और मेरे सवाल का जवाब दे जी या मेरे एतराज का जवाब दे, और अगर वो अपनी बात को सही साबित कर दे तो वो इनाम ले जाए, जो भी मैंने जिस पे जो भी इनाम बोला हो। बहुत बेहतर बात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर बात आपने बोली है जी। तो हजरत ये का नाम जो खुलासा मोबाइल पे करना, फोन पे करना चाहेंगे कि आमने सामने करना चाहेंगे? जैसे तुम्हारा दिल चाहे, दुनियाई देवंदियत के बड़े से बड़े मौलवी जैसे कहें वैसे कर लें। देखो नौसन भाई जी, ज्यादा गलत ऐसे अल्फाज न बोल जो दिल को नागवार लगे ना। हम आपको देवबंदी हो कि नहीं? जी बिल्कुल हूँ। तो मैंने देवबंदी तो कहा है, देवबंदी आलिमों के लिए मैंने कहा है। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, तो अगर आपकी सलाहियत अच्छी है जी तो क्या आप मुझसे किसी भी मौजू पर बात करेंगे? नहीं हजरत, मैंने बात करने से मुतालिक फोन नहीं किया है। नहीं, आपने मुनाजरे का नाम लिया ना अभी कि कैसे मुनाजरा करेंगे, सामने करेंगे, वीडियो पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप बताइए कैसे करेंगे आप? हर चीज का हजरत, ये हर चीज का एक वक्त मुतय्यन होता है, हर चीज का तो आप वक्त मुतय्यन कर लीजिएगा, जो है वक्त मुतय्यन कर लीजिए। हम आपसे इतना जानना चाह रहे थे कि उम्मत के अंदर सुधार पैदा हो जाए। जी और बिल्कुल, उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे हम आपकी बात से सहमत हैं।
पूरी उम्मत प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक तो मुसलमान है नहीं है तो फिरकों में बटा हुआ है। हम आपकी बात से सहमत हैं। पूरी उम्मत अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, अगर आप हुजूर के वफादार बनना चाहते हैं तो हम आपकी बात से जो है राजी हैं। नहीं हजरत, वफादार तो उसी वक्त बनेंगे तो आप उसको साबित कर देंगे, आप साबित कर देंगे तो फौरन में इंशाल्लाह का नाम मैं दोबारा का नाम आप बताएंगे, हम आला हजरत का दामन पकड़ लेंगे। देखिए वो तो आप पकड़ो ना पकड़ो, वो तो आपकी किस्मत है। नहीं, आला हजरत का दामन पकड़ लेंगे। और ये का नाम अगर ये एक माँ का नाम ये एक मुसलमान होने के नाते से बात कर रहा हूँ, अगर आपने साबित इस बात को कर दिया तो जी, अगर हमारा का नाम हम अहले कुफर हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल लोग ताकियां करते हैं। मैंने आपको तो नहीं कहा ना। नहीं आपने नहीं कहा तो कहे तो पूरे मतलब को रहे हजरत। मैंने पूरे मसलक को भी नहीं कहा। आप ये साबित कर दीजिए कि मैंने पूरे मसलक को कहा है। अगर आपने ये भी साबित कर दिया कि मैंने आपके पूरे मसलक को कहा है, मैं तो खुद मेरी एक मिनट जी 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 मेरी ऑडियो में आवाज नहीं सुनी आपने कि मैंने कहा है कि देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं? क्या ये बात आपने नहीं सुनी है? तो फिर मैंने आपकी पूरी जमात को कहां से कह दिया? जी बिल्कुल सुनिए मौलाना साहब, कुछ तो जरा थोड़ा सा फिक्र करें, कुछ तो सोच समझ के थोड़ा सा लफ्ज इस्तेमाल करें। देखिए हजरत, 3 सालों से तक आपके बराबर चैनल में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ, ना हमने कुछ बोला है। और जवाब बन भी नहीं पड़ेगा मौलाना साहब। आप मुफ्ती हैं या मौलवी हैं? मैं इसलिए मौलवी हूँ। अच्छा, जवाब बन भी नहीं पड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ठीक है, अगर बस हम तो ये चाह रहे थे कि इंसानियत के नाते सारी बात सामने खुल के आ जाए। इंशाल्लाह हम और आप इसी तरह प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। जी जी हाँ, तो हो सके अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के अंदर सुधार पैदा कर दे। और सुधार अगर जो नूरसन भाई अगर सुधार होगा तो अल्लाह की ज़ात से बड़ा दीन के अंदर बहुत नफा होगा। बेशक जी। तो का नाम बेहतर तो तरीका मैं यही समझ रहा था। मैं भी कोई लंबा चौड़ा कोई दूर से नहीं, मैं आपके करीब से ही हूँ। अच्छा, कहाँ से? जी, शाहजहांपुर से हूँ। शाहजहांपुर से? जी। अच्छा, आपके शाहजहांपुर से ज्यादा कोई लंबा चौड़ा दूरी की नहीं। जी। अगर आमने सामने अगर बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने साबित कर दिया तो मैं फौरन वहीं पर आला हजरत का दामन पकड़ लेंगे। देखिए, आप आला हजरत का दामन पकड़े या ना पकड़े, मैं इंशाअल्लाह आपको गलत साबित करूंगा, आपके अकीदे को गलत साबित करूंगा, आपके अकाबिरीन को गलत साबित करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर आपसे बात करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे आप बात कर लें। आप शाहजहांपुर से हैं, मैं रामपुर से हूँ। आप बरेली शरीफ आ जाइए, बरेली शरीफ बात कर लेते हैं, या आप हमारे रामपुर आ जाइए। बरेली शरीफ नहीं, कोई दूसरी जगह चुन लीजिए। हाँ ठीक है, तो आप हमारे रामपुर आ जाइए। नहीं, और आपकी सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। नहीं, फैसिलिटी उसकी बात कोई ना, रामपुर को हमारे लंदन में नहीं है। कहने मतलब आप अपना इलाका छोड़ दो, मैं अपना इलाका छोड़ दे रहा हूँ, दूसरे इलाके में निकल चलिए, वहाँ पर आमने सामने इसका मुज़ाकरा हो जाए। फोन पर ही बात कर लीजिए ना, फोन पर बात करने से क्या जाता है? नहीं हजरत, फोन पर हर सारी चीज नहीं मिल पाएगी। फोन पर बात कर लीजिए। फोन पर सारी चीज नहीं मिल पाएगी। और फिलहाल हमें मसले मसाइल के अंदर उस वक्त जाना नहीं है, जाना हमको उसी वक्त जो आमने सामने जाना है। मैंने फोन जो आपसे मुतालिक यही किया था कि हजरत का नाम अगर इसकी इंसानियत खुल जाए और उसका नाम सारी बात सामने आ जाए तो उम्मत प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो इंशाल्लाह बड़ा दिन के अंदर नफा होगा। मैं आपकी सोच से, और हमने कोई आपसे ना कोई आपको जलील करना, रुसवा करना ना आपको, हालांकि आपने बातें तो बहुत सारी कही, लेकिन उन बातों के अंदर हमें जाना नहीं है। मैं आपकी सोच से मुत्तफिक हूँ। जी जी, मुझे खुशी हुई कि आपने जो है इस बात को सोचा जी यार उम्मत में जो फसाद पैदा हो रहा है, जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो एक हो जाए। जी, मैं आपकी इस सोच से बहुत बेहतर मुझे लगा और बहुत अच्छा मुझे लगा। मगर एक और भी बात कह दूं, उलमाए देवबंद का कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। तो हजरत आज आ जाए, फिर आगे तो उसके लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप जहाँ बता दें वहाँ के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं क्या बताऊँ, फोन पर ही बात कर। अरे इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? हजरत मैं खर्चा करूँ, आप खर्चा करें, मैं इधर जाऊँ, आप उधर जाएं, तो सबसे बेहतर है कि फोन पर ही बात हो जाए। नहीं, फोन की बात में एतमाद नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं अरे भाई ऐसे कैसे नहीं, वो रिकॉर्ड होगा ना। नहीं, आप ही रिकॉर्ड कीजिए, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा। नहीं भाई, आप देखो, आप यही तो भागने वाली बातें हैं। भागने वाली का चलिए फिर बाद में बात करते हैं। तो अब बात नहीं हो पाएगी, बन नहीं पाएगी बात। बन नहीं पाएगी? नहीं बन पाएगी। कैसे बनेगी? मैं क्या बताऊं कैसे बनेगी?
अरे फोन की वजह आमने सामने कर लें, आमने सामने आपकी ज़ियारत हो जाएगी। अभी मौजूद छेड़े, आप अभी मौजूद छेड़े, इंशाल्लाह मैं अभी जो है क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है कि आप उसको क्लियर कर देंगे। आपके नहीं, हमारे अच्छे अच्छे मुफ्तियान कराम से आपका साफा पड़ चुका है। आप तो का नाम बड़े बड़े ऊंची चोटी के उलमाए देवबंद, बड़े बड़े मुफ्तियों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात हुई है। जी जी। तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार के जो है सामने अपने आप को हक पर साबित नहीं कर पाया, अपने अकादमी को हक पर साबित नहीं कर पाया इंशाल्लाह। जी जी। हाँ, तो हजरत आपकी बात फोन पर हुई है ना, कोई आमने सामने मुनाजरा हुआ नहीं? मैं मुनाजिर हूँ भी नहीं ना जो मैं आपसे मुनाजरा करूंगा। मैं तो अपने मसलक की हक्कानियत को बयान करूंगा, अपना अकीदा बयान करूंगा। मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा, अपने आप को हक पर साबित करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हक पर अगर साबित आपको हजरत करना हो तो आमने सामने कर लें। आमने सामने कोई जरूरी नहीं है, फोन पर भी हो सकता है। अगर आमने सामने करने का ज्यादा ही शौक है तो फिर आ जाइए आप रामपुर। नहीं देखो हजरत, देखो कहने की बात है, बुरा मत मानना। आपकी सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। अब तो ऐसी बात करें तो आप हमारा शाहजहानपुर आ जाएंगे। आपको यही खतरा होगा ना कि यार कोई मुझे कुछ कहेगा, कोई मारेगा, डांटेगा। ऐसी कोई बात ना है। अगर ऐसी बात है तो आप हमारे शाहजहानपुर में आ जाएं। सारी जिम्मेदारी मेरी, मगर मुझे तो वक्त भी नहीं मिलता ना। नहीं भाई। हाँ, मेरे पास वक्त भी नहीं है ना। आपकी जो बात जितनी बात हुई हजरत है तो सारी मोबाइलों पर बात हुई है, आमना सामना कर ले। फिर वही बात, अरे सामने से आप क्या कर लोगे ये बताओ? सामने से क्या साबित कर लोगे आप? जो हम कुछ मैं साबित करूँ, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हो पाया। इतने मुनाजरे हुए, इतने उलमा के, क्या कर पाए हो आप? जी जी। एक जगह का बता दो, 1000 मुनाजरे हुए, किसी एक मुनाजरे की फतह दिखा दो आप। हजरत ये आमने सामने की बातें हैं। फिलहाल सच्चाई इसी में ही है कि एक जगह की आप फतह मुझे दिखा दो, जहाँ का नाम लोगे वहाँ की शिकस्त मैं आपको जो है दिखा दूंगा, सामने रख दूंगा मैं। समझे जनाब? जी जी, बहुत अच्छा समझ रहा हूँ। तो मैं आपकी उस सोच से मुत्तफिक हूँ और मुझे अच्छा लगा आपकी वो जो सोच है कि यार उम्मत में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है नहीं होना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो सुनकर। जी हाँ, मैं आपकी सोच से मुत्तफिक हूँ और बात यह है कि सामने वाला जैसा होता मैं वैसी बात करता हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की और मैं भी आपसे जो है अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलते जैसे कि शुरू में अंदाज था तो हो सकता है कि मैं भी कुछ डालता आपको। देखो प्यारे हमारी एक मिनट बात सुन लीजिएगा। ये दुनिया भी बात कर रहा हूँ, दिन के मुताबिक कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुन चुका हूँ। तो आपने कहा कि आप मुझे भाई नहीं कर सकते, आप सलाम नहीं कर सकते हैं। सलाम मैं उसी के जवाब देता हूँ जो हमारे मसलक का होता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा सलाम भी नहीं, हाँ हम खुलेआम है, ढके छुपे वालों में से नहीं है। मैंने सोचा कि मैं आपको सलाम भी नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको भाई करके भी नहीं पुकार सकता हूँ। तो मैं सामने वाले से पूछ लूँ कि मैं आपसे बात करूँ तो किससे मुतालिक बात करूँ। तो मैं इसी बात से मैंने आपको सलाम किया और सबसे पहले मैंने आपके सामने यही बात रखी कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो किस अंदाज से बात करूँ और आपसे क्या कह के पुकारूँ, यही बात बोली। तो हो सके अगर हमारी तरफ से कोई कड़वा बोल निकल गए तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, किसी की इज्जत जो है की जाती है तो अपनी इज्जत पाने के लिए। जी बिल्कुल। आप मुझे ही बदतमीज बोलते, मेरी इज्जत ना करते तो मैं शायद आपकी भी ना कर पाता। जैसा आप बोलते मैं भी बोल देता, है ना? नहीं, हमारा काम ये नहीं है कि किसी को जलील करना, रुसवा करना। हाँ, तो मेरा अपना यही उसूल है कि सामने वाला जैसा हो, सामने वाला जिस तरीके की बात करे फिर उसी तरीके की उससे बात की जाए। और आपने जब मेरी ऑडियो सुनी ही है तो हर एक महकमे के इंसान से मेरी बात हो चुकी है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे जो है डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, मतलब हर किसी महकमे के इंसान से, सिर्फ एक जज को छोड़ के। हजरत माजरत चाहते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि सिर्फ आपकी जो बात हुई फोन पे ही बात हुई, आमने सामने कहीं रास्ता नहीं हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आमने सामने से तुम कर क्या सकते हो? मैं फिर उसी बात को कहूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आमना सामना करना चाहूंगा। हाँ क्या रे, मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ। आप सामने से भी कुछ साबित नहीं कर सकते हो और फोन पर भी कुछ साबित नहीं कर सकते हो। अपने आप को आप हक पर साबित कर ही नहीं सकते हो किसी भी तरह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार लिख के दे सकता है आपको। तो अगर नहीं कर पाया तो
हजरत नूर हसन भाई, अगर मैं नहीं साबित कर पाया तो मैं फौरन आला हजरत का दामन पकड़ लूंगा। देखिए मैं फिर आपको यही कहूंगा, मुझे नहीं पता, वो तो आपकी किस्मत है। जी जी अगर आपने दामन पकड़ा तो आपकी किस्मत। जी जी थानवी जी ने भी उनको आशिक रसूल कहा है। जी, कहा है कि नहीं कहा है? किसको? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को। जी कहा है ना। तो हजरत कहने मतलब ये इसी बात में तो खुलासा करने के लिए आमना सामना करना चाह रहा हूँ। जी जी ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीज और जी जी सामने बात करने के लिए बहुत सारी किताबों की भी जरूरत है। बिल्कुल 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 लगभग गाड़ी भर से ज्यादा किताबों की जरूरत है। क्या पता कब कौन सी बात निकल आए या किस मौजू पर बात होने की है। कोई मौजू बिल्कुल हाँ जी, यह किस मौजू पर बात होनी है, जी जी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम तो ज्यादा लंबा चौड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैटर ही नहीं छेड़ते, समझे। बस थोड़ी सी बात जो है समझदार इंसान के लिए काफी होती है। जी जी हाँ, छोटी सी बात। लेकिन हजरत कलम जो बात फैल रही है अवाम में, अवाम नास में जो बात फैल रही है, इसके असरात अच्छाई के नहीं बल्कि का नाम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत से लोग तौबा कर चुके हैं इंशाल्लाह ये बात सुन के कि नूर हसन के सामने आज तक कोई भी जो है देवबंदी बड़े से बड़ा उलमा टिक के बात कर नहीं पाया और वो अपने आप को हक पर साबित कर ही नहीं पाया। लगभग कम से कम 12-15 देवबंदी हजरात ने जो है जो गुमराहियत में चले गए थे तौबा कर चुके हैं। आपने सुना होगा जब आप मेरी ऑडियो सुनते हैं। और फिलहाल बहुत से अनगिनत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली, बॉम्बे और पता नहीं कहाँ जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करते थे या कारखानों में काम करते थे और वहाबी देवबंदियों के साथ मेल जोल दोस्ती रखना मतलब एक आम बात होती है वहाँ मिलना जुलना। तो मेरी ऑडियो सुन के, गुफ्तगू सुन के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उन लोगों से ताल्लुकात खत्म कर दिए, बंद कर दिए और उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। उनको चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते जी। तो हजरत इसी बात के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि आमने सामने यार ये कौन से आमने सामने की एक मिनट इंशाल्लाह आमने सामने भी बात हो जाएगी। मैं आपके पड़ोस से ही किसी को भेज दूं बात करने के लिए। मेरा होना जरूरी नहीं ना। नहीं, आपका ही होना चाहता है कि मेरा जाती मैटर भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है। मेरा जाती मैटर इस बात को साबित किया है। मेरा जाती मैटर नहीं है ना कि मैं दीन के लिए वो मेरी जात की बात है, मेरी जात की बात नहीं ना, दीन इस्लाम की बात है ना। नहीं हजरत, हमने कई जगह देखा कि और कोई बात अगर सामने बात कर रहा तो आपने चैलेंज इस बात को बहुत सारी बातों को दिया है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि दुनिया का कोई देवबंदी और दुनिया का कोई भी देवबंदी अपने आप को, अपने अकाबिरीन को अगर हक पर साबित कर दे तो मैं 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उलमाए देवबंद को हक पर साबित करता हूँ, ठीक है, तो तुम अपने आप को हक पर साबित, हजरत मेरा फोटो मत लेना, तो अपने आप को हक पर साबित करते ही नगद हैंड टू हैंड 1 लाख रुपए इनाम के ले लो आप मुझसे। अच्छा, और अगर आप ना कर सके जी उसके बदले क्या करोगे? हक पर करना साबित कर तो मैं आपका क्या नाम वाला बताता रहा हूँ, मैं कलम देवबंदी छोड़ बरेली में शामिल हो जाऊंगा हजरत। सच्चे दिल से, ईमानदारी के साथ में, लिल्लाहियत के साथ में। ठीक है, ना वही दिखा देंगे। और अगर आप का नाम मैंने अगर साबित कर दिया तो आपको का नाम आला हजरत का दामन छोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं तो आला हजरत का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आला हजरत अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वली का कुर्ब हासिल हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है, मैं जन्नती हूँ, मोमिन हूँ, ईमान वाला हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो भी नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सामने मुझे लाजवाब कर दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जो ईमान वाले हैं, मोमिन है, किसी गुस्ताखे रसूल के सामने हमारे पार्टनर जो है लाजवाब भी नहीं करता, बेइज्जत भी नहीं करता, इज्जत देता है अल्लाह तबारक व तआला। ये अल्लाह का फजल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आप सोच रहे हैं ये कभी सपने में भी मत सोचना। अरे हजरत, सोचा तो मैंने सपने में नहीं है जी। अगर अगर मैं आपसे फोन पे बात करना नहीं कर दो तो उसमें वो लफ्ज आपका दुरुस्त नहीं। मैंने कहा कि मैं जो लफ्ज आपने कहा ना कि आला हजरत का दामन छोड़ देना, तुम टाइम निकाल के हमारी तरफ तो मैं यार जन्नत का रास्ता कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। समझे?
तो अपनी जबान संभालो फिर बात करो। जी जी भाई। हाँ, क्या हुआ, कौन है उधर? सर आप ना कहना, थोड़ा फिर दूसरे बोलना था। हाँ हाँ, सर आप अपना दिल पर ना लीजिए कि मैं आपको हमको बोल दिया हूँ। ना ना ना, मैं नहीं कह, मैं समझ रहा हूँ उधर कोई है, कोई बंदा। जी जी। हाँ, तो कुरान का फरमान है, जी हम दुआ कर रहे हैं कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने हमें तरीका बताया है कि दुआ करो तो ऐसे, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। ठीक है। उनका जिन पर तेरा इनाम है, तो यार जिन पर अल्लाह का इनाम है मैं वो रास्ता कैसे छोड़ सकता हूँ? नूर हसन भाई जी, क्या दूसरे वक्त में किसी से बात कर सकता हूँ? थोड़ा लेबर चल रही है कि अच्छा, और ये ना तो आप सोचना कि फोन छोड़ के भागे, फिर हमने उससे मुतालिक कोई बात ही ना छेड़ी, बात तो हमारी जो खैर के एतबार से बात हो रही थी, समझ रहे हैं? क्या हुआ? आप ये मत वो सोच रहे फोन छोड़ के बहुत फोन हमारा काटते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं काम लेबर चल रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह हो सके किसी दूसरे वक्त में बात करूंगा, और बात जो करूंगा इंसानियत के नाते में इंशाल्लाह बात करूंगा। और फिलहाल मसले मसाइल को हमें बात करना नहीं, इंसानी वो सिर्फ सीधी सादी बात करना, जिस तरीके से अभी हमने बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इसी तरह बात होगी, मगर आप जो आस पास आके बात करने की बात कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी किताबों की जरूरत है। तो ठीक है, अपना वक्त ना तो गाड़ी भर के किताब आप ही ला सकोगे, ना मैं ला सकूंगा, क्योंकि उतनी किताबें है भी नहीं, जो देवबंद ने बंद कर दी किताबें। वक्त बता दीजिए ताकि आपको सहमत ना हो। नहीं, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, हालांकि मैं अभी भी बिजी हूँ, कहीं पे हूँ। नहीं, अगर वक्त वाली तो मैं कल से फोन लगा रहा, फोन आपने कोई जवाब नहीं दिया, कहीं मैसेज दे दिया आपको। कल आपने एक फोन वापस किया था, तो उसमें शायद मैं गाड़ी चला रहा था, आपको फोन कर नहीं पाया मैं। बहरहाल मैं भी बिजी रहता हूँ, क्या करूँ, और मुझे पता भी नहीं था कि आपका कॉल पहले भी आया कि अभी मैंने देखा तो आपका कॉल आया हुआ था। कई कॉल थे। कल मैसेज आपने दिया था, नहीं दिया था? मुझे पता नहीं, याद नहीं है। देख लीजिएगा, कल आपने मैसेज दिया था, कल असर के वक्त में आपको फोन दिया आया था। तो फिलहाल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसमें बात ना हो सके, मैं उसी टाइम में कुछ आपसे थोड़ा बात करने वाला था, लेकिन उस वक्त मिल नहीं पाया। घर पे काम चल रहा, लेबर आ चुकी है कि 2 बच्चों को आएगा, तो दूसरे वक्त में किसी टाइम बात कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने हो सके आपको वक्त का नाम में मदरसा पढ़ाते हैं क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? मौलवियत? नहीं, मौलवियत नहीं। अच्छा, दर्जे हिफ्ज़ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप इसी अंदाज में बात करें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्योंकि इस तरह के आलिम बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक चीज और मैं कहता हूँ कि जो मुझसे प्यार मोहब्बत से एक बार बात कर लेता है, एक बार फंसने के बाद कभी वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाता। आप फंसो या ना फंसो वो तो एक अलग बात है, मगर आप कभी भी ना गलत भी मत बोलना। अगर आप गलत बोल गए तो मैं तो बाकियों झड़ के रख देता हूँ, आपको मालूम है। ठीक है, मैं ये भी नहीं देखता सामने वाला है कौन, और ना मैं मौत से डरता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, आप और मैं दोनों इंशाल्लाह इसी अंदाज में इसी तरीके से प्यार से बात करेंगे, ठीक है, ताकि अवाम की इस्लाह हो जाए। हो सकता है कि आप और हमारे दोनों के जरिए से हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए। जरूर जरूर इंशाल्लाह, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है, काम कीजिए अपना, और जब भी आपको वक्त मिले आप कोई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ दिनों पहले आपको बालों का कोर्स दिया था जी जी, और पहले बाल ये बिल्कुल सीधे सीधे थे और पूरा सर अंदर से ज़्यादा गंजा था मेरा। जी 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 जी, मैंने आपसे दवाई ली थी जी, तो उससे मुझे रिलीफ मिला है माशाल्लाह। काफ़ी। मुझे जब सब गंजा गंजा कहते थे दूर से कि गंजे भाई यहाँ आओ, गंजे भाई यहाँ आओ, जी, लेकिन मुझे उससे शर्म आती थी, तो मैंने कहा लाओ इसका इलाज मैं करता हूँ। तो आपके तेल से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, काफ़ी दुगना मामला असर हो गया है माशाल्लाह अभी। माशाल्लाह। 2.5 से 3 महीने हुए हैं मुझे। अच्छा अच्छा, 2.5 से 3 महीने आपको हो 2.5 चुके से हैं 3 महीने हुए हैं, और रिजल्ट में माशाल्लाह रिजल्ट जो है दुगना है। जी जी माशाल्लाह। 51 साल की मेरी उम्र है। मेरी भी इतनी सोच नहीं थी। ना ना, आपने तो मुझसे मना करा था जी, कि पैसे खराब जाएंगे, लेकिन मैंने कहा पैसे खराब जाएं, लेकिन एक बार मैं इस्तेमाल जरूर करता हूँ। माशाल्लाह। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इससे भी ज़्यादा आपको शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमाए। इंशाल्लाह। अभी तो है ही, तो मैं जो है इसमें लगा हुआ हूँ अभी। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे
ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو، کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔